Good morning, dear students. How are you? I hope you all are fantastic. I, Priyanka, welcome to all on online EVS class at home. Today we are going to cover day 16 of Unit 3, States of Matter and Force. Please note, हमने day 15 skip किया है क्योंकि day 15 में demonstration of catapult था जिसको हमने day 14 में ही complete कर लिया था. Okay? We learnt about friction and how it acts between two solid objects trying to move. Let us see how friction force acts in liquids and gases. Solids में हमने पढ़ा था कि जब two solids objects को जब हम आपस में रब करते हैं तो वहाँ पर हीट भी प्रोड्यूस होती है और वहाँ पर हमारा फ्रिक्शन भी होता है. So today we will see friction in liquids as well as in gases. आज हम लिक्विड्स और गैसेस में भी देखेंगे कि फ्रिक्शन हमारा कैसे एग्जर्ट होता है. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल शो यू डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ फ्रिक्शन इन लिक्विड्स. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. Now see, what is in my hand? A jar that is filled with water. Yes. Now see, what is this? Bowl. If I'll put this bowl in water, then what happen? It floats. If I'll push it in the water, then you can see जो बॉल है वो बिल्कुल बॉटम पे चली गई है. एंड इफ आई रिमूव माई हैंड, अगर मैं अपने हाथ को हटाती हूँ तो देन व्हाट हैपन्स? द बॉल कम्स आउट on the surface of the water, you can see. So what we see? Friction in liquids means liquids के अंदर भी friction होता है. अगर मैं इस बॉल को पुश करती हूँ then what happen? तो ये नीचे चली जाती है. and if I'll remove my hand then what happen? ये again बाहर की तरफ आती है. So you can see the motion of the object in the downward direction. बॉल नीचे की तरफ गई but जो force of friction है वो किसकी तरफ आया है? upward direction. Okay, force of friction acts in upward direction and if I'll push the ball inside the water then it goes downside. You can see it goes down and if I'll remove my hand then you can see the force of friction direction. In opposite direction it works. Okay? We see that the ball faces a force of opposition and this force is friction. Friction acts opposite to the direction of the motion. जो friction है वो हमेशा ही हमारा opposite direction में work करता है motion की. And fishes also experience this force of friction while moving through water. Okay? जो फिश है वो भी force of friction को क्या करती है? एक्सपीरियंस करती है during moving in water. Now I'll show you one more demonstration, friction in gases. Okay, what is in my hand? A piece of paper. Okay, if I'll throw it in the air, then what happen? Yes, it goes downward direction. But ये धीरे धीरे जा रहा है, एकदम से नहीं जा रहा ना. It goes slowly, not instantly. Okay, so why it happens? Due to the friction. You can see it goes downside. Okay, so friction also exerts in gases. Friction in gases, we know that friction slows down an object in motion. Means जो फ्रिक्शन है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को स्लो डाउन करता है. ओके, लेट अस सी व्हाट हैपेंस इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स थ्रू द एयर. डज एयर एक्सर्ट्स द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन? क्या एयर भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सर्ट करती है? नाउ लेट्स सी. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक अ शीट ऑफ पेपर एंड थ्रो इट फ्रॉम अ सर्टन हाइट. एक पेपर की शीट लेंगे हम और फिर हम उसको
एक सर्टन हाइट से हम उसको फेंकेंगे, ठीक है। एंड आफ्टर दैट व्हाई डज द पेपर नॉट फॉल इंस्टेंटली बट इट फॉल्स स्लोली टू द ग्राउंड। तो हम क्या देखेंगे कि जो हमारा जो पेपर है वो हमारा एकदम से नहीं आता, वो धीरे 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 ग्राउंड पर आता है, ओके। एंड दिस हैपन्स ड्यू टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, एयर इज एक्सर्टिंग ऑन द पेपर। तो जो पेपर है उसके ऊपर भी हमारी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सर्ट होती है एंड इट एक्ट्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन एंड स्लोज डाउन द मोशन ऑफ द पेपर, और जिसकी वजह से हमारा जो पेपर है उसकी जो मोशन है वो स्लो हो जाती है। Thus we see that the friction acts in all the states of matter, solid, liquid and gas, okay. Now I'll show you CRL. You will watch the CRL carefully. What happens when you roll a ball on the carpet? जब आप कोई भी बॉल कारपेट पर रोल करते हो तो क्या होता है? Yes, it stops after some time. Yes, रुक जाती है अपने आप ही. Why it happens? इसके पीछे क्या रीजन है? Very good, force of friction. I know that even air exerts friction. So, if I throw a ball upwards, it should also stop. Means जो एयर है उसके अंदर फ्रिक्शन एक्सर्ट होता है, तो जो हम बॉल ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो भी तो हमारी ऊपर जाके ही स्टॉप हो जानी चाहिए ना, बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि जब हम बॉल को फेंकते तो वो नीचे की तरफ आती है, ओके। व्हाई इट हैपेंस? लेट मी चेक। यू कैन सी इन द पिक्चर, एक लड़की है, वो बॉल को ऊपर की तरफ फेंक रही है, बट जो बॉल है वो दोबारा से नीचे की तरफ आ रही है। एंड यू कैन सी एक सर्टन हाइट तक वो चली जाती है बॉल, और वो सर्टन हाइट तक कैसे जाती है? हम जितनी ज्यादा फोर्स अप्लाई करते हैं हमारी बॉल उतनी ही ज्यादा ऊपर तक जाती है, ओके। सो दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन वी थ्रो अ बॉल अपवर्ड्स, इट कम्स डाउन, ओके। जो बॉल है वो नीचे की तरफ ही आती है ना, यस। कम डाउन एंड नॉट स्टॉप। जो बॉल है वो नीचे की तरफ ही क्यों आती है? वो ऊपर ही जाके क्यों नहीं रह जाती, या ऊपर ही ऊपर क्यों नहीं जाती है? लेट अस सी। द बॉल कम्स डाउन ड्यू टू अ मैजिक फोर्स। एक मैजिक फोर्स होती है, एंड व्हाट इज दैट? दैट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी which acts on every object and pulls it towards the center of the earth. एक मैजिक फोर्स होती है जिसका क्या नाम है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और वो सारे की सारी जो चीजें जो भी हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं वो सारी नीचे की तरफ आती हैं। जो अर्थ है, अर्थ सारी चीजों को अपनी तरफ खींच लेती है, ओके। सो व्हाट इज दैट? दैट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ओके। Now you will open your SR 10. Let's start. Gravity. The motion of an object due to force depends on whether it is placed on a flat surface or slanted surface. Means जो मोशन होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी स्पीड से हमारा मूव कर रहा है, तो वो हमारा किसके ऊपर डिपेंड होता है कि वो कौन सी जगह पर, कैसी जगह पर हमारा प्लेस है, रखा हुआ है, ओके। तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट फ्लैट सरफेस पर है तो हमें उसमें ज्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है, ओके। और अगर हमारा ऑब्जेक्ट स्लांटेड सरफेस पर है तो हमें कम फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ अ बॉल rolling along a flat surface and rolling down a ramp as shown below. You can see here one ball is placed over the flat surface and one ball is placed over the slanted surface. ऐसे ही जैसे आप साइकिल चलाते हो ना, तो जैसे अगर हमारे फ्लाईओवर होते हैं तो फ्लाईओवर पर जब हम उतरते हैं तो उतरते टाइम हमारा स्लांटेड सरफेस हो जाता है, तो हमें ज़्यादा पैडल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती ना, और हम
जल्दी से स्पीड से नीचे की तरफ भी आते हैं, ओके। बट अगर हमारा सरफेस बिल्कुल फ्लैट होता है तो हमें साइकिल के ज़्यादा पेडल लगाने पड़ते हैं, ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है, ओके। We observe that the distance covered by a ball on a flat surface is less than the distance it covers on a slanted surface. Means जो बॉल है वो हमारा ज़्यादा डिस्टेंस कहाँ कवर करेगी, ऑन द स्लांटेड सरफेस, कम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी, बट फ्लैट सरफेस पर हमारी जो बॉल है वो ज़्यादा टाइम में कम डिस्टेंस कवर करेगी. Why does this happen? This happen due to the gravity, okay, which is a force that pulls all objects downwards. It is because of gravity that motion on a slanted surface is easier than motion on a flat surface. Means slanted surface पर कोई भी object हमारा speed से move करता है और जल्दी भी हमारा नीचे आता है स्लांटेड सरफेस वाला, ओके। बट फ्लैट सरफेस वाले पे हमें ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है, लेकिन फिर भी वो कम डिस्टेंस कवर करता है. अंडरस्टैंड? तो व्हाट इज दैट? दैट इज ग्रेविटी. आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द ग्रेविटी. क्योंकि कोई भी चीज जब हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो नीचे की तरफ आती है, तो वो भी क्या है? दैट इज ऑल्सो ग्रेविटी. मीन्स अर्थ attract all things towards the center of the earth, and what is that? That is gravity. Okay. Now you will open your worksheet number 13 and you will do question number 1 just now. Define gravity. State one example where gravity is acting. You can take help from your SR and you will do this question. आप ग्रेविटी को डिफाइन करेंगे और उसका आपको एक एग्जाम्पल भी देना है जहां पर हमारा ग्रेविटी वर्क करता है, ओके. आफ्टर 2 minutes we will discuss the answer. Your time starts now. I hope you have done. Now let's discuss the answer. The force that pulls all objects towards the center of the earth is known as the force of gravity. Means जो ग्रेविटी होती है वो फोर्स ऑफ पुल, यानी कि हर चीज को अपनी तरफ आकर्षित करती है, ओके. हर चीज को अपनी तरफ खींचती है. तो द फोर्स दैट पुल्स ऑल ऑब्जेक्ट्स टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ इज नोन एज फोर्स ऑफ ग्रेविटी. अर्थ सभी ऑब्जेक्ट्स को अपने सेंटर की तरफ खींचती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? ग्रेविटी. फॉर एग्जाम्पल, अ बॉल थ्रोन अपवर्ड्स कम्स डाउन ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन इट. अगर हम कोई भी बॉल ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो हमारी किस तरफ आती है? नीचे की तरफ आती है, ओके. तो आप इसी प्रकार कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ऊपर की तरफ फेंकोगे तो वो हमेशा कहाँ आएगा? नीचे आएगा. और वो नीचे क्यों आएगा? ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ओके. Today we learnt about the force of friction in liquids and gases and about the force of gravity. I hope you understand. Now let's discuss the homework. You will write 2 real life examples of the force of gravity, friction in liquids and gases in your notebook.